Good morning, class 12th, and welcome back to online class. Subject is economics and the macroeconomics part 3 video. We will continue of the chapter number 2, the national income and the some other basic concepts. Now, in this video, we will read the income method. So, in an income method is that method which measures the national income in terms of payment, which is to be made in the form of wages, rent, interest, and profit. So, what are the factor incomes? The important points here. The factor incomes are earned incomes, and the transfer payments are unearned. रिमेंबर फैक्टर इनकम जो होती है वो हमारी अर्नड इनकम होती है, ठीक है, जिसके लिए हमने काम किया है, जिसके लिए हमें इनकम मिलनी है. ट्रांसफर पेमेंट्स आर अनअर्न्ड. फैक्टर इनकम्स आर रिवार्ड फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है. And the transfer payment are just one-sided payment as no services is rendered in return for the transfer payments. Now, in this method, we will use the three terms: the compensation of employees, operating surplus, and the mixed income. So, the national income is a sum of the payments made by the producing enterprise to various factors of production in the domestic territory of the economy, and net factor income from abroad we will add to calculate the national income. So I hope now you will clear the income method. Now the steps involved, the formulas involved in the income method is, see this. फर्स्ट वन इज़ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, जैसे वेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एट होम, है ना, और पेंशन और रिटायरमेंट. अब अगर आप सोचोगे तो वेजेस और सैलरी आपको पता लग गया. पेमेंट पेमेंट क्या होती है, बेसिक सैलरी, बोनस, डियरनेस अलॉयस. सो ऑल दीज आर इंक्लूडिंग इन द वेजेस एंड सैलरी, एंड पेमेंट इन काइंड्स आर द वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड. सेकेंड था हमारा एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. अच्छा, ये हम देते हैं लाइक द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, मेडिकल क्लेम पॉलिसी, क्लियर हो रहा है, or the insurance premium for the employees. All these are the social security, the employer contribution to the social security scheme. Or pension, retirement pension are like the deferred and the delayed wages of the employees who work for the organization till their superannuation. So these are included in the estimation of the national income. We will include all these terms. तो ये सब किस में आती है हमारी, फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. देखो फैक्टर इनकम में तीन चीज़ें आती हैं. पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड वन इज़ योर मिक्स्ड इनकम. तो आपको पता लग गया होगा कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं. वेजेस और सैलरीज आती है, पेमेंट आती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती है, और पेंशन ऑन रिटायरमेंट आती है. सो यू एंड द one more thing you must remember, the old age pension in the pension or retirement are the unilateral payment or the transfer payment, and this one is not included in the estimation of the national income. ठीक है, तो कोई confusion मत रखना. Remember, old age pension are the unilateral payment. It should not be included in the national income as a pension on the requirement in compensation of employees. Now, second one is the operating surplus. मैंने कहा था ना compensation of employees जुड़ता है, operating surplus जुड़ता है. अब operating surplus है क्या? It includes the income from the property, means जो हमें income property से हो रही है या entrepreneurship से हो रही है. Entrepreneurship मतलब firm. It is earned in both प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, सब जगह होता है. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. क्लियर, याद रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट. क्लियर हो रहा है. प्रॉफिट में डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस सेविंग ऑफ द एंटरप्राइज और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो सब हमारा ऐड हो जाएगा. अब हम बात करते हैं रेंट और रॉयल्टी की.
तो रेंट हमारा रिवार्ड है. इट इज़ द रिवार्ड पेड बाय द टीनेट्स ऑफ द लैंडेड बिल्डिंग एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी टू द ओनर ऑफ दीज रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. ठीक है, प्रॉपर्टी से ही आ रहा है ना, तो रेंट हो गया. इंटरेस्ट, हाउस होल्ड एंड द फर्म्स ऑफन बोरो द फंड्स फॉर द वन पर्पस और द अदर रेंजिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टू मीटिंग सम कंजप्शन एक्सपेंडिचर. क्लियर हो रहा है. So they have to pay interest on the funds they have borrowed for the purpose of national income accounting. Only the interest paid for the investment purposes. इंटरेस्ट आपको कौन सा ऐड ऑन करना है नेशनल इनकम में, जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो, इज टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन. सो द इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, वो वाली इंटरेस्ट इनकम नहीं इंक्लूड होंगी. कौन सी नहीं होंगी? पहली, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक डेट. दूसरी, इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर सच एज द इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पस. मैंने अभी बोला इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगी तो ऐड होगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा तो नहीं होगा. क्लियर हो रहा है. तो ये सब हम चीज़ें ऐड नहीं करते हैं. क्लियर हुआ. तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या ऐड करते हैं? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. रॉयल्टी आपको पता लग गया होगा. रॉयल्टी जो एक अमाउंट होता है इज पेड बाय द लीजर होल्डर और टीनेट्स टू द ओनर. क्लियर हो रहा है. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम. नाउ द मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन. मिक्स्ड इनकम में हमारी वो सब इनकम आ जाएगी जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए होगी, which is using their labor, land, capital and entrepreneurship to produce goods and services. And these income are mixed in terms. ये सारे mixed होती हैं जिसमें wages, rent, interest, profit. So that is why it is called the mixed income. इसीलिए हम इसको mixed income कहते हैं. तो clear हो गया. Domestic factor income also include the mixed income of the self-employed. So for example, देखो, if a doctor is using 2 rooms of his house to run his clinic, अगर डॉक्टर जो है 2 रूम्स यूज़ कर रहा है अपने क्लिनिक को रन करने के लिए, so he himself is the labor and the entrepreneur who has employed his own capital. लेबर भी वही है, एंटरप्रेन्योर भी वही है, सारा पैसा भी उसी ने लगाया है. सो हिज ग्रॉस अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन फीस कैन नॉट बी बिफरकेटेड इनटू द रेंट, wages, interest and profit. So it is taken in the same combined form under the heading of the mixed income. इसीलिए हम इसको मिक्स्ड इनकम में अर्न कर देते हैं. क्लियर हो गया. तो 3 चीज़ें हम फैक्टर इनकम में हमारी 3 चीज़ें ऐड होती हैं. पहली, वेरी गुड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सेकेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस. एंड थर्ड वन इज योर मिक्स्ड इनकम. वेरी गुड. Now we will discuss the measurement of the national income. So before going to start the measurement of national income, you must remember the NDP at FC is equal to the sum total of factor income during an accounting year. Now the NDP at FC become compensation. 3 चीज़ें ऐड कर दी हमने तो हमारा क्या आ गया? NDP FC आ गया. When we are adding NDP at FC at the net factor income from abroad, तो डी में मैंने क्या ऐड किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो मैं किस पे आ जाऊंगी? डी से एन पे आ जाऊंगी. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, एन डी पी एट एफ सी. जब मुझे डी से एन पे आना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एन एफ आई ए. और एन एफ आई ए क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर आपको 2 चीज़ें दे रखी है, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, तो आप क्या करोगे? फ्रॉम में से 2 माइनस करके ऐड करोगे. Now it's clear. So first of all we will calculate the NDP at FC, then we will add the NFIA. It will become the national income. Now the precautions while estimating the factor incomes. देखो मैंने आपसे पहले भी क्लियर था कि ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, pocket expense should not be included in the national income, because corresponding to the transfer payment there is no value addition in the economy. It should must be remembered that retirement pension is included in the national income as it is a part of the compensation of employees. क्लियर हो रहा है. मैंने आपको बताया था कि रिटायरमेंट पेंशन ऐड होती है नेशनल इनकम में, पर ओल्ड एज पेंशन नहीं होती. क्लियर. सेकेंड इज इनकम फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड.
थर्ड, सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। मैंने पिछली क्लास में बताया था सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं हमें इंक्लूड नहीं करते जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन वी विल प्रोसीड। Sale proceeds of share and the bonds are not to be included in the national income because these items are not related to the flow of the goods and services. विंडफॉल गेन्स हो गए, लॉटरीज, कैपिटल गेन हो गए, ये सब हमारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती क्योंकि इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। इम्प्यूटेड रेंट हो गया, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है क्योंकि रेंट हम इंक्लूड करते हैं। गुड्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। इंडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टेंड टू इंक्रीज मार्केट प्राइस गुड्स सर्विसेज का बढ़ जाएगा, ये हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में बट एट एमपी प्राइस पे, बट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट एफसी। याद रखना, अगर एफसी पे है तो आपको ऐड नहीं करना है और अगर एमपी पे है तो यू शुड बी एडेड। सो I hope now you will more clear what should be added while you are calculating the national income and what should not to be added. So these are the precautions we have to take while we are calculating the national income. So I hope now it's more clear to you. Now the corporate tax, dividend, undistributed profits, all other components of corporate profit, once profit is not included in the national income, ये सब जो हमारा कंपोनेंट्स जो है हमारे सेपरेटली ऐड नहीं होते, वो सब हमारा उसी में ही ऐड होता है जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस करते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है और अलग से आपको डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सब भी दे रखा है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे बिकॉज ऑल दीज आर द कंपोनेंट अंडर द ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर हो रहा है ना? इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडिड, अलग से ऐड नहीं करते इसको भी हम। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और टैक्सेस ऑन द विंडफॉल गेन्स आर पेड नॉट आउट द करंट इनकम बट आउट ऑफ द पार्ट सेविंग टैक्स पेयर, दीज आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो अब मुझे लगता है कि आपको प्रिकॉशन समझ में आ गया कि क्या आपको ऐड करना है और क्या आपको ऐड नहीं करना है। So all these points you must remember what should be added and what should not to be added. Now the question we will do on the measuring of national income. So we will do, the question is given to you, the current transfer from ROW, that is 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 1000 दे रखा है, वेजेस और सैलरी 3800 दे रखी है, डिविडेंड आपको 500 दे रखा है, रेंट आपको 200 दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, एंड डी कैपिटल फॉर्मेशन दे रखे है ना 500 दे रखा है। चलो एट्थ पे देखते क्या क्या दे रखा है। और प्रॉफिट दे रखा है हमें, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, एनएफआई दे रखा है हमें, कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। तो कैलकुलेशन हम नेशनल इनकम की दोनों तरीके से कर सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। आपको वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आप इनकम मेथड के फॉर्मूले में यूज़ करते हो। सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के लिए मुझे 3 चीज़ें लेनी है। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस, पहला हमारा क्या, कंपनसेशन ऑफ प्राइस, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आता है वो सब हम चीज़ें ऐड करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में जो चीज़ें आती हैं वो ऐड करेंगे और मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे। नाउ सी, एनडीपीएफसी क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इसमें वेजेस आ गई, सैलरी आ गया, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी। तो हम किस पे आ गए, हमारा एनडीपीएफसी निकल गया। एनडीपीएफसी से जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आते हैं ना, डी से एन पे आना है तो क्या समझाया था कि एनएफआई ए ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड। वेरी गुड। तो वो हमें -30 दे रखा है, -30 मीन्स हमें ऑलरेडी वो नेगेटिव में दे रखा है तो हम वो माइनस कर देंगे। 5150 हमारा क्या आया था एनडीपीएफसी, उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, वी शुड डिडक्ट द -30, so the answer will become 5120 crore. So I hope now the question is more clear to you. The second method, the income method, we have done. So do the questions of the income method in your notebook. Goodbye students, take care, stay blessed and safe at home. In a part 4 video we will continue the expenditure method. Take care at home. Goodbye.